کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیرل کے نوجوان ایڈونچر ٹورزم میں دلچسپی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کیرل سے کشمیر کا سفر اسکوٹر پر کیا۔ کشمیر کے غیر دریافت شدہ خوبصورت مقامات کو منظر عام پر لانا اس نوجوان کا مشن ہے۔ پیش ہے رپورٹ۔ کیرل کے 20 سالہ مصب کشمیر کے خوشنما مناظر سے بے حد متاثر ہے۔ ساتھ ہی وہ ان مقامات کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں جو ابھی سیاحتی نقشے پر نہیں آئے ہیں۔ مصب کو دیہی زندگی میں زیادہ دلچسپی ہے۔ اسی اسکوٹر پر مصب نے کیرل سے کشمیر کا سفر کیا۔ جب مصب کشمیر آئے تو اس وقت شدید سردی تھی، لیکن مصب نے موسم کو اپنی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ Actually, I started about 5 months ago. And I reached Kashmir within 22 days. Not a straight route. I have been traveling all the left part of the India, like Goa, Gujarat. Gumne aayega. Then when I reached Kashmir, the Ladakh side was closed because of the snow. Then my college was also opened. Then I decided to put the Chedak here. And I went back to Kerala. After 4 months, I came back to Kashmir. Actually, I planned to stay only 2 weeks, but I have not explored all the Kashmir, and lots of places are pending, like Gurez, Lolab Valley. مصب نے اب تک کشمیر کے مختلف مقامات کی سیر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا گلمرگ، پہلگام اور سری نگر کے علاوہ بھی کشمیر کے دیگر خوبصورت مقامات سے واقف ہو۔ جب مصب سے پوچھا گیا کہ وادی کے دور دراز علاقوں میں جانے پر انہیں کوئی خدشات نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نامساعد حالات کا ذکر صرف خبروں میں ہی ملتا ہے، یہاں انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ Every people from Kerala came to Kashmir, just visit Gulmarg and Pahalgam, then go to Ladakh only. But the main beautiful places are still a lot of places in Kashmir, but they haven't explored anything. Actually, I'm traveling with my friend in Kashmir. I'm traveling with my friend to explore mainly in Kashmir villages, their love towards us, their hospitality, everything. When I stay with village peoples, I am one of them. They are treating like I am one of them and their guest also. مصب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو وادی کے روایتی سیاحتی مقامات کے علاوہ دیگر علاقوں کی سیر و تفریح کی ترغیب دیتے ہیں۔ مصب کے مطابق ملک کے مختلف جگہوں پر زیر تعلیم طلباء کے ذریعے انہیں کشمیر کے خوشنما مناظر کے بارے میں پتہ چلا اور اب وہ ان مقامات کو ایکسپلور کرتے ہوئے اسے بڑے پیمانے پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی نائب چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے ویمن امپاور سینٹر آرمی گڈ ول اسکول شالٹن ضلع سری نگر میں 6 مہینے کے کرافٹ ٹریننگ سینٹرز کا افتتاح کیا۔ کرافٹ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کٹنگ اینڈ ٹریلنگ اسکیم کے تحت عمل میں آیا۔ اس موقع پر کیلو فورس کے GOC کرنل SK رینا موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر کے VIB کے سیکرٹری اور CEO رشید احمد قادری کے KVIB اور کیلو فورس کے افسران شرکت کی۔ اس موقع پر نائب چیئرپرسن نے KVIB مشن کے مقاصد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو مائکرو انڈسٹریل یونٹس قائم کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ جو یہ انہوں نے یہاں پہ 6 منتھس جو کورس کروا رہے ہیں، لڑکیوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ جو ہماری جو لڑکیاں ہیں یہ سیکھے کٹنگ اور ٹیلرنگ کا کام، تاکہ یہ جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اور ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے۔ یہ آج ہم نے یہاں پہ قریب 25 بچیوں کا یہاں پہ کرافٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یہاں پہ 25 لڑکیوں کو ہم اسٹیچنگ ٹیلرنگ کا ٹریننگ دیں گے 6 مہینے کا، جس میں ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، اور ہم امید کرتے ہیں پھر جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی اسپانسرڈ اسکیمز ہے وہ ان کا لابھ لے کے اپنے یونٹس، اپنے بوٹیکس، اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس شروع کریں تاکہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے خود مختار بن سکے، اپنا وومن امپاورمنٹ کا جو ہمارا مدعا ہے اس کو اور آگے لے کے جا سکے۔
CRPF 28 बटालियन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से श्रीनगर के करालगुद इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया। कैंप में मकामी लोगों ने मुफ्त दवाइयां और कोविड किट्स तकसीम की गईं। मकामी लोगों ने कसीर तादाद में इस मेडिकल कैंप में शिरकत की। उनका इलाज CRPF के माहिर डॉक्टर्स ने किया। मकामी लोगों ने इस पहल के लिए CRPF का शुक्रिया अदा किया। कोविड हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए यहाँ पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक कोविड किट भी दिया जा रहा है, जिसमें N95 मास्क है, नैपकिन्स हैं, सोप्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं। जम्मू में शाह हमदान साहब के आस्थाने पर तज़यीन व आराइश के काम शुरू किए गए हैं। इस मौके पर मकामी लोगों के अलावा सूफी मुबल्लिग मौलाना गुलाम रसूल बाबा भी यहाँ शरीक रहे। फ़कीर कादर साहब मकामी ने हज़रत ज़ैनुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की इंतज़ामिया कमेटी के इश्तराक से इन कामों का आगाज़ किया। इंतज़ामी कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वह तमाम सूफिया के मज़ारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। मंदिरों और दीगर मुक़द्दस मकामात जैसे पाप हारान, सालिया, लुगरीपुरा, बदरेशी की हिफाजत का बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा इलाका सूफी बुजुर्गों के मज़ारात और मुक़द्दस मकामात को सर्किट के तौर पर तरक्की दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं और सभी अक़ीदत से इलाके का रुख करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां मुश्ताक अहमद समनानी ने DDC के चेयरमैन बिल्किस जान, DDC मेंबरान और दीगर अफसरान की मौजूदगी में आज यहाँ ग्रीन हाउस मिनी सेक्रेटेरिएट में हाईटेक सब्जियों के बीज की फरोख्त की शुरुआत की है। इस मौके पर शोपियां और उसके मुल्हिका इलाकों से सब्जियों के काश्तकारों का बड़ी तादाद में जमा हुए। काश्तकारों से बात करते हुए ADC ने कहा कि महकमे किचन गार्डन स्कीम को फरोग़ देने के लिए पाबंद अहद है। ADC ने कहा कि हमारा मकसद मयारी बीज काश्तकारों को फराहम करना है ताकि सब्जियों की पैदावार में इजाफा हो सके। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो किचन गार्डनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फरोग़ दें ताकि काश्तकारों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। इसी मेंबरान की चेयरपर्सन की मौजूदगी में हमारा जो हमारा ये हाईटेक पॉली हाउस है, इसमें हमने सीडलिंग्स की सेल को स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल हमने इसमें कोई 60 से 70 हज़ार सीडलिंग लगाई हुई हैं। कुछ जो कोल क्राफ्ट की हैं, जो एग्जॉटिक हैं, एग्जॉटिक मीन जो बाहर की हैं, जैसे रेड कैबेज की है, केल की है, लेट्यूस है और ऐसे दूसरी जो हमारी कॉलीफ्लावर की वैरायटी जहाँ लगी हुई है। माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने और वसी रकबे पर जंगलात को फैलाने के लिए पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत होती है। इस काम को महकमे सोशल फॉरेस्ट्री बखूबी अंजाम दे रहा है। पेश ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। जिला कुलगाम में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने सैकड़ों हेक्टेयर अराजी पर पेड़ पौधे लगाए हैं। इस सिलसिले में कई क्लोजर बनाए गए हैं। वो कई बरसों से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो वसी जंगलात में जानदारों की खुराक के साथ साथ मकामी रिहायशी बस्तियों के लिए भी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान मुहैया कर रहे हैं। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने ज़िला कुलगाम में ऐसे क्लोजर्स की देखरेख के लिए मकामी लोगों से ताउन हासिल किया है। अत मन घास लोत हेकन अनित, अत मन हेकन कुन सात होज जिन हड़ अनित, अत मन सबील क्या अत मन जड़ी बूटी तह, मगर अस तम अथ कह अगर तथ लायक तह सह सह अनित। वनकस न जमीन हेकन अम रुड़ गि न मतलब कह चीज बे अम फायदे वनकस ज्यादा पहन घास लोट अनान, जिनहड़ अनान, कह चीज अनान अम या कुन वक्त अमर मजबूरी गसान हेको अम सत्या फायदे तुलित सोशल फॉरेस्ट से खास कर गार्डन हूँ शुक्र गुजार कि यमो कर रश यमो बनो यह असल क्लोजर यमो कर असल रश वोश तो बनो असल सानी। महकमे के मुताबिक इस साल भी पेड़ पौधे लगाने का काम अंजाम दिया गया। इससे हासिल होने वाली आमदनी को मकामी सतह पर ही खर्च किया जा रहा है। जो भी हमारे क्लोजर बनते हैं उसमें जो भी बेनिफिट होता है वो हम उन लोगों को देते हैं जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं वो उसमें घास लेते हैं, उसमें बालन लेते हैं, जो भी उसका जो प्रोड्यूस निकलता है बस
पेड़ों को डैमेज नहीं करने चाहिए। जो भी हमारा एक मैंडेट आता है कि विलेज वुडलॉट है कि स्टेट लैंड पे अगर कहीं खाली जगह है या गांव वालों की कोई कॉमन लैंड है वहां पे हम पौधे लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है वो क्लोजर, तो उसमें 75% शेयर जो उसका है, जब उसको हम ऑक्शन करते हैं, जब उसको हम बेच देते हैं, तो 75% शेयर जो है वो गांव वालों को मिलता है। शम्मा रूही कहती हैं कि हुकूमत पेड़ पौधे लगाने के काम काफी शद्दोमत से अंजाम दे रहे हैं ताकि माहौलियात को लाहक खतरात को टाला जाए। चेंज जारी है माहौल में, इन सबको कम करने के लिए ही तो गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है हिंदुस्तान का कि जो भी स्टेट्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती है कि उनमें फॉरेस्ट कैसे है, और जम्मू कश्मीर में टॉप 10 में आया है कि इसने बहुत इम्प्रूव किया है एफॉरेस्टेशन में, प्लांट्स में पौधे लगाने में और जंगलों को वापस लाने। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हर शहरी का अवलीन फर्ज है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिज़वी की रिपोर्ट।